Okay, start writing. We will do questions again today. Numericals. This is the first question. What can you say about the entropy of the universe? So we know that the entropy of the universe keeps increasing. Whenever there is any kind of natural process occurring, the entropy will increase. So the entropy of the universe continuously keeps increasing. This is as per the second law of thermodynamics. So the entropy keeps increasing. Entropy of what keeps increasing? Entropy of the universe keeps increasing. What is universe? Universe is system plus surroundings. So the entire thing. Second question. Write down the second question. So what should be the sign of delta S for this reaction? Positive or negative? What should be the sign of delta S? For any chemical reaction, how do you compare the sign of delta S? So for a reaction, you find out the value of delta Ng. Delta Ng. This is what you find out. If delta Ng is positive, delta S is also positive. If delta Ng is negative, then delta S is negative. What is delta Ng for this reaction? Look at the products. Both are gases. The coefficient of PCl3 is 1. Coefficient of Cl2 is also 1. So 1 plus 1 minus coefficient of reactant, that is this. So delta Ng is 1. Since delta Ng is positive, delta S also should be positive. Coming to delta H now for this reaction. The question has told you that it is thermal decomposition. Thermal decomposition means the decomposition has happened after heat has been absorbed. Heat has been absorbed. So, sir, delta H will be positive So then. delta H will be positive because whenever heat is absorbed, we know that Q is positive.
Q is positive. Now delta H is also positive here because if nothing is mentioned in the question, we will assume that Q is delta H. So Q is equal to delta H, and so delta H is positive. Why? Because heat has been absorbed. Thermal decomposition. Thermal decomposition means heat has been absorbed. So it's an endothermic reaction. When heat is absorbed, it's endothermic. So I can say this. Delta H will be positive, that is greater than 0 because reaction is endothermic. Delta S is also positive because delta Hg is positive. Finish the solution. Write down the solution properly. So for an endothermic reaction, delta H is positive. For an exothermic reaction, delta H is negative. Next question. Question number 3. This we have already discussed. What is the answer? So shouldn't there be no change? Why? Mixing. Sir, it Recollect will be mixing. positive. मिक्सिंग में क्या हो रहा है? क्यास बढ़ेगा ना, डिस्टर्ब Entropy increase होगा. मिक्स करोगे तो Entropy increase होगा. so entropy always increases if mixing takes place. That means delta S is positive. If mixing takes place, remember that entropy increases because when mixing happens, the molecules are disturbed. So the chaos is more. Sir, if those gases were reacting, then तो फिर डेल्टा Ng से करना पड़ेगा रिएक्टिंग होगा तो. okay. इसके लिए मेंशन कर दिया डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. अगर कुछ मेंशन नहीं है, then also it is assumed that they do not react with each other. Because if they are reacting, then the reaction must be given. सर अगर रिएक्ट करेंगे और फाइनल मोल्स इनिशियल मोल से ज्यादा है तब हाँ, यही ना. इंक्रीज होगा ना. यही जैसा सेकंड क्वेश्चन में था. ओके सर. That's why I'm saying अगर रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा Ng निकालना पड़ेगा. डेल्टा Ng के साइन को देख के हम लोग डेल्टा S के बारे में बताएंगे. बट अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट अवे बोल देना है कि हाँ मिक्सिंग है तो डेल्टा S will be positive. So this is the answer. Write down the answers. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो क्वेश्चन लिखो, पहले खुद करने की कोशिश करो.
How will you start this? सर मुझे एक डाउट है सर, लास्ट लेक्चर में आपने 5 क्वेश्चंस लिखवाए थे राइट? हाँ, क्या लास्ट लेक्चर में आपने 5 क्वेश्चंस लिखवाए थे? लास्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चंस लिखवाए थे हाँ सर। तो जो पीडीएफ में डाला था लेक्चर में उसमें एक्चुअली ज़्यादा क्वेश्चंस थे। हाँ मैंने और भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। तो लाइक उसका नोट डाउन होने मतलब करने का स्पेस हाँ क्वेश्चंस तो नोट डाउन करने ही पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, so how will you solve this? What do you see when सर आइसोबारिक है। okay constant pressure is isobaric? तो Then फिर वर्क डन निकाल सकते हैं। but work done क्यों चाहिए? उन्होंने work done के लिए कुछ पूछा ही नहीं है। Entropy के लिए I mean change in entropy के लिए what is the first or the basic formula that you use? सर वो वाला यूज कर सकते हैं हाँ कौन सा? सर, वो जनरल वाला है, तो सबके लिए वैलिड। हाँ okay, so what is the formula? Tell me the formula. सर वो 2.303 n CV log T2 अच्छा तो वो हाँ that is also one possibility कि वो पूरा याद रखो उसको और याद रखने के बाद सीधा उसको अप्लाई करो क्योंकि डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। यस दैट इज आल्सो वन पॉसिबिलिटी। या फिर अगर किसी को याद नहीं रखना है वो तो सीधा हम लोग चालू कर सकते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी से। ऐसे चालू कर सकते हैं हम लोग सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। तो ऐसे चालू कर सकते हैं। ये तो याद है ही सबको, डेल्टा एस इज इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी। अब डी क्यू क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए? डी क्यू इज इक्वल टू डी एच। यस सर। Right. If pressure is constant, dq is equal to dh. And if volume is constant, then dq is equal to du. That is isopodic isobaric. हम लोग वो बोर्ड देख रहे हैं। अब चलो आगे बढ़ो। I'm waiting for 1 minute. Try to finish this. What is the formula of dh? NCPDT। NCPDT correct. आइडियल गैस मानना है हमेशा गैस को। वो उसको उधर डाल देंगे और फिर वो NCPLNT हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर। Initial temperature is given in the question. Final temperature is also given in the question. So T1 and T2 are given to you. Put the values. If I put the values, I'll get this. ये हो जाएगा फिर। If I solve this, I'll get this. Now for a diatomic gas, Cp is 7/2R. How?
बिकॉज वी नो हर एक का CV हमको पता होना चाहिए. CV is 5/2R for a diatomic gas. तो CP क्या होगा? CP is CV plus R. CP is CV plus R. That is Mayer's formula. ऐसे करके आ जाएगा. One by T का integral is ln T. So ln T2 upon T1 because final temperature is T2 and initial temperature is T1. So ln T2 by T1 करेंगे तो हो जाएगा. अब ln से log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2.303 से ln2 को मैंने क्या लिख दिया? 2.303 log 2. R is 8.314. Now log 2 का वैल्यू मैंने आपको पहले से दे के रखा है. मैंने बोला है log 2 और log 3 हमेशा पता होने चाहिए. log 2 is 0.3. 0.3. तो डाल दोगे तो फिर आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे. Forty is the answer. 40.2. Joule upon Kelvin. Delta S का unit is what? Joule upon Kelvin. Final answer is this. तो 40.3 है. हाँ ठीक है, वो तो वैसे भी MCQ में तुमको नियरेस्ट ऑप्शन ही चुनना है ना. 40.2 आएगा, किसी को 40.1 आएगा, किसी को 40.3 आएगा. That's okay. पॉइंट के बाद के बारे में नहीं सोचना है. हाँ, अगर इंटीजर टाइप है या न्यूमेरिकल टाइप है तो यू हैव टू बी एक्यूरेट, अदरवाइज नॉट. Right? So pressure is constant and that is why dq is dh. Diatomic gas क्वेश्चन में बोल के रखा था. Diatomic gas number of moles भी 2 दे के रखा है. So the value of n is 2. Okay, next question. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करो. This is the question. कॉपी करो क्वेश्चन, फिर समझाता हूँ. डन. यहाँ तक लिख के हो गया. Yes, sir. सर ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक स्टेट क्या है? ये तो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर है. जैसे कार्बन में ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं ना,
हाँ सर। वैसे ये दो एलोट्रॉप्स है सल्फर के, ओके अलग स्ट्रक्चर से दोनों ही सल्फर है बट दोनों के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है। ओके ओके, ये फेस चेंजिंग पे बेस्ड है। फेज चेंज जैसा है, हाँ बोल सकते हो काइंड ऑफ, बट यहाँ पे फेज तो नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हो रहा है, बट हाँ द calculations will be similar. Because वो भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड है, रोम्बिक भी सॉलिड है, तो वी कैन नॉट से कि वो फेज चेंज हो रहा है, बट हाँ एलोट्रोपिक फॉर्म बदल रहा है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म जब बदल रहा है तो हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर से Q विल बी सेम एज डेल्टा H। So instead of using Q, we can use delta H because the pressure will be a constant. क्यों प्रेशर कांस्टेंट है? बिकॉज ऐसे कोई फेज ट्रांजिशन होता है या फिर कोई ऐसा एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर इंटर कन्वर्जन होता है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट। क्वेश्चन यहाँ तक है पूरा। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर देखे रखा है। Assume the surroundings to be an ice water system at 273 Kelvin. मतलब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर आपको 273 केल्विन मानना है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। Okay, done. Copy the question fully. यस सर। पूछा क्या है? Calculate change in total entropy. What is the meaning of change in total entropy? तो मतलब सराउंडिंग Delta S Delta S. total. Delta S total is also called delta S universe. So that means they are asking you for the change in entropy of the universe. Correct? Change in total entropy means change in entropy of the universe. How do you find out that? I'll find out delta S system and also I will find out delta S surroundings. Delta S system plus delta S surroundings is nothing but equal to delta S of the universe. तो यानी हमें पहले डेल्टा एस निकालना पड़ेगा सिस्टम के लिए, डेल्टा एस निकालना पड़ेगा सराउंडिंग्स के लिए, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल डेल्टा एस या फिर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कहलाता है। नाउ कितना मोल ऑफ सल्फर इन्वॉल्व है क्वेश्चन में? 1 मोल बोला है। ट्रांजिशन कितने मोल्स का कराना है? 1 मोल का ट्रांजिशन कराना है। फाइन देन ऐसे बल लिख सकते हैं हम लोग। This is the first thing that we can write. The transition has been shown in the form of a chemical equation. S is sulfur. चलो ऐसे लिख देते हैं। So this is the transition from monoclinic we have to go to rhombic. Delta S system की अगर बात करें तो delta H upon T हो जाएगा because delta H is nothing but equal to Q. Why? Because constant pressure पे ये change हो रहा है। मैंने अभी बोला अभी आपको कि कोई भी ट्रांजिशन होता है इस टाइप का जहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म बदलता है या फिर फेज बदलता है तो प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है।
For any such transition, pressure and temperature both remain constant. And so I can say that delta S system is equal to delta H upon T. This T is nothing but T system. सिस्टम का निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर भी सिस्टम का ही होना चाहिए. So temperature is T system. Okay, you have to be very particular while you are solving questions on entropy, so that you clearly demarcate what the system parameters are and what the surrounding parameters are. So mention properly. Now, how many moles are involved? 1 mole is involved. Delta H का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है कितना? -401.7 जूल पर मोल. तो 1 मोल के लिए कितना है? -401.7 joules. So that means delta H is -401.7 joules. Right? And temperature is given as 368 Kelvin. देखो टेम्परेचर क्वेश्चन में देके रखा है 368 केल्विन पे हो रहा है ये ट्रांजिशन. So 368 is the temperature of system. ये आंसर आएगा आपका. माइनस में आ रहा है बिकॉज डेल्टा H is given as -401.7. Any doubt? सर स्टेट चेंज हो रहा है मतलब मोल्स भी इफेक्ट होंगे ना? नहीं, क्यों? 1 मोल को लिक्विड से सर गैस में डाल रहे हो तो उतना ही जाएगा ना, लिक्विड टू गैस. हाँ सर, बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना? हाँ, but moles क्यों चेंज होंगे? How can the quantity of matter change? स्ट्रक्चर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है एटम्स के अंदर का. हाँ सर, मैं कंफ्यूज हूँ. मोल्स एंड ग्राम्स विल नेवर चेंज. वो कब चेंज होते हैं? वो तब चेंज होते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो ही वो मोल्स चेंज हो सकते हैं, वरना मोल्स चेंज नहीं हो सकते. So delta S system is -1.091 joule per Kelvin. We need to find out delta S of surroundings as well. अब देखो, जितना सिस्टम ने एनर्जी एक्सचेंज किया, हीट एक्सचेंज किया है, अब इस केस में अगर बात करें तो 401.7 जूल्स है वो अमाउंट, बट ये माइनस लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम बिकॉज यू सी अ नेगेटिव साइन. व्हेनेवर यू सी अ नेगेटिव साइन in front of delta H, that means heat is released by the system. तो अगर ये ट्रांजिशन के वक्त हीट रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट को, यानी सराउंडिंग्स को, तो कैन आई से सराउंडिंग्स आर गेनिंग दैट अमाउंट ऑफ हीट? करेक्ट? यस सर. सो सराउंडिंग्स आर गेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट. मतलब 401.7 ही मैग्नीट्यूड है, बस फर्क इतना है कि सराउंडिंग्स गेन कर रहे हैं और सिस्टम लूज कर रहा है. तो सिस्टम जो हीट लूज कर रहा है वो भी 401.7 जूल्स है, और सराउंडिंग्स जो हीट गेन कर रहा है वो भी 401.7 जूल्स ही है. लेकिन माइनस ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम छोड़ रहा है उस हीट को, सिस्टम रिलीज कर रहा है, और इसके लिए माइनस साइन लगाया गया है. लेकिन अभी सराउंडिंग्स तो गेन कर रहा है उस हीट को, बिकॉज सिस्टम ने छोड़ दिया हीट को, तो सराउंडिंग्स ले लेगा उस हीट को. तो प्लस साइन लगाना पड़ेगा अभी हमारे लिए क्यू सराउंडिंग्स के लिए. So this is the answer for this. So surroundings heat absorb कर रही है. क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हीट छोड़ी है. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स क्वेश्चन में बोला है 273 केल्विन है, तो इसलिए 273 केल्विन डाला है टी सराउंडिंग्स के लिए. ये आंसर आएगा. अब टोटल निकालने बोला था तो टोटल कर देंगे.
This is total. Delta S total is delta S system plus delta S surroundings. ये आंसर आ जाएगा फिर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा एस टोटल को. What is the other way of calling this or saying this? Delta S universe. Delta S of universe. क्वेश्चन में बोल सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स का, तो घबराना नहीं है, मतलब यही है. डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस टोटल. तो डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू -1.091, डेल्टा एस सराउंडिंग्स का वैल्यू +1.471. If I add up, I'll get this. मुझे अब ये बताओ, डेल्टा एस टोटल का साइन देख के, इज दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? Is this process described in the question spontaneous or non-spontaneous? How do you decide spontaneity? डेल्टा एस टोटल से डिसाइड करते हैं ना. तो डेल्टा एस टोटल का साइन देखते हैं, वही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि अगर डेल्टा एस टोटल किसी प्रोसेस में पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है. दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Delta S total is greater than 0 for any spontaneous process. तो क्या है ये प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. Spontaneous, because delta S total is greater than 0. Correct. Whenever delta S total is greater than 0, the process is spontaneous. Spontaneity डिसाइड करने के लिए हमको डेल्टा एस टोटल देखना पड़ता है. डेल्टा एस सिस्टम देख के भी बोल नहीं सकते, डेल्टा एस सराउंडिंग्स देख के भी नहीं बोल सकते. वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एस टोटल फर्स्ट एंड देन उसको देख के अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो ही वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. डन. यहां तक कॉपी कर लिया? Yes, sir. Please finish till here, then I'll go ahead. Okay, next question. It's a graph-based question. Start copying. It's a pressure versus volume graph. क्वेश्चन में ये भी गिवन है
भी लिख लो जो मैं लिख रहा हूँ. ये भी दिया हुआ है. सर वो जो डॉटेड लाइन है वो ये बता रहा है कि मतलब irreversible है प्रोसेस. नहीं. डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि that is another alternative path to reach Z. तो सर अगर वो पाथ पकड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन से ही जाएगा ना. स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं दिखा सकते बिकॉज अगर स्ट्रेट लाइन बना दिया तो ऐसा लगेगा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. इसके लिए डॉटेड लाइन बना के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक अलग प्रोसेस है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस व्हिच हैज बीन शोन यूजिंग कंटीन्यूअस लाइंस. मतलब दो अलग अलग प्रोसेसेस को कंपेयर किया जा रहा है. कहने का मतलब ये है एक x टू y और y टू z और एक अलग से x टू z. दो अलग अलग पाथ्स को आप कंपेयर कर रहे हैं. So whenever you see a dotted line, तो आपको समझ जाना है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पाथ है. तो उसको अलग से देखना है. Copy the options. Okay. हो गया कॉपी करके.
कॉपी कर लिया. Yes, sir. Now let's start. See, X is the initial state and Z is your final state. क्वेश्चन में देके रखा है. तो मतलब क्या? मतलब एरो का डायरेक्शन देख के मैं बोल सकता हूँ कहां से कहां हम लोग जा रहे हैं. X to Y अगर हम लोग जा रहे हैं and then Y to Z अगर हम लोग जा रहे हैं, that is one possibility of reaching Z. The other possibility is to directly go from X to Z, which is shown by a dotted line. So these are the two possibilities. So the first possibility is you go from X to Y and then you go from Y to Z, and the second possibility is that you go directly from X to Z. Okay. Now, क्वेश्चन में एंट्रोपी और वर्क के बारे में ऑप्शंस हैं. Now we know that entropy is a state function, but work is a path function. तो सर एंट्रोपी का तुम डायरेक्टली बोल सकते हैं. हाँ, तो एंट्रोपी का क्या बोल सकते हैं कि अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. कैसे भी आप जाओ इनिशियल टू इनिशियल और फाइनल, फाइनल पोजीशन तो सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा. तो आई कैन से दैट या तो मैं x टू y और फिर y टू z जाऊं, या फिर मैं सीधा x टू z जाऊं, तो भी डेल्टा s का वैल्यू सेम आएगा. करेक्ट. हाँ सर. सो ये बोल सकते हैं ऑप्शन ए, x टू z डायरेक्ट जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा ऑप्शन ए का जो लेफ्ट हैंड साइड है. और ऑप्शन ए का लेफ्ट हैंड साइड में x टू z मतलब वो डॉटेड लाइन है, डायरेक्टली आप x टू z जा रहे हो. तो जो वैल्यू डेल्टा s का आएगा वही वैल्यू आएगा अगर आप x टू y जाओ और फिर y टू z जाओ, which is shown by the continuous lines in the graph. Continuous lines. तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा. सो डेल्टा s x टू y प्लस डेल्टा s y टू z दोनों ऐड कर दोगे तो डेल्टा s x टू z ही आएगा, क्योंकि आप तो z तक पहुंच ही रहे हो कैसे भी करके x से. तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन है तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे जा रहे हो, दो पाथ्स में जा रहे हो या एक डायरेक्ट एरिया में जा रहे हो. तो डायरेक्ट पाथ में जा रहे हो तो भी डेल्टा s का वैल्यू वही आएगा. घूम के जा रहे हो x टू y और फिर y टू z तो भी डेल्टा s का वैल्यू टोटल वही है. So I can say option A is correct. Right? What about the work done in this entire process? अगर मैं x to y जाता हूँ, can I say x to y is an isobaric process? Yes, sir. X to y is an isobaric process. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा माइनस p into v2 minus v1, where v2 is the volume at point y and v1 is the volume at point x. और सर वो yz में And y to z अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो वो 0 आएगा, because y to z is an isoporic process. The volume is constant along y to z. Since the volume is constant along yz, I can say straight away that the work done along yz is 0. And so the work done, if I go from x to y and then from y to z, is simply equal to the work done along x to y. So I can say option D is the correct answer. That is work done. If you go from x to y to z is nothing but equal to work done if you just go from x to y. So A and D are correct. अभी explanation देखते हैं. So work is a path function. Work is a path function तो path पे depend करेगा. यानी x to z अगर मैं जाऊंगा तो कुछ अलग value of work आएगा. और x to y और फिर y to z जा रहा हूँ तो अलग वैल्यू आएगा. इसके लिए मैंने नॉट इक्वल टू साइन लिख दिया यहाँ पे. This is not equal to, no? Not equal.
वॉल्यूम इज कांस्टेंट अलोंग yz। yz कौन सा है? ये है yz, देखो करेक्ट। क्लियर हो गया वर्क डन का? दैट मींस x टू z में जाऊंगा तो कुछ अलग वैल्यू ऑफ वर्क आएगा, और x टू y और फिर y टू z जाऊंगा तो फिर कुछ अलग वैल्यू ऑफ वर्क आएगा। दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन सी इज रॉन्ग। इसके लिए सी करेक्ट नहीं है। लेकिन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी के लिए ऑप्शन नहीं करेक्ट है। Entropy is a state function, so I can say this. Done till here? Any doubt? Next question. Copy this.
sir. Same. In this process, latent heat is absorbed, right? Correct. So, sir, can't you say directly that it is endothermic and then? It is endothermic, na? Obviously, it's endothermic. Okay. तो सर क्या हो फिर रहा है? डेल्टा सिस्टम तो पॉजिटिव ही होगा. ये हाँ. सिस्टम हो गया और हाँ. सराउंडिंग नेगेटिव हो गया. देखो, एक चीज मैंने लिखवाई थी आपको थियरी में जब एंट्रोपी चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर फेज चेंज हो रहा है, क्या कहा था? अगर फेज चेंज हो रहा है, फॉर एनी फेज चेंज, सो स्टार्ट राइटिंग नाउ. फॉर अ फेज चेंज, ये मेन पॉइंट है जब फॉर अ फेज चेंज pressure as well as temperature remain constant. ये पहली बात है. प्रेशर एंड टेम्परेचर remain constant. ये पहली बात है जो पता होनी चाहिए. For any phase change, pressure and temperature remain constant. So Q is equal to delta H. Okay, because pressure is constant. That is the first thing. अब यहाँ पे NCP delta T मत लगा देना delta H के लिए, क्योंकि NCP delta T जो होता है that is applicable when the temperature is changing for a gas. यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. फेज चेंज के वक्त सिर्फ और सिर्फ हीट अब्सॉर्ब होती है या फिर हीट रिलीज होती है, पर टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता है. So I cannot say that delta H is equal to NCP dt. NCP delta T कब एप्लीकेबल है? जब टेम्परेचर गैस का चेंज हो रहा है. यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज हो रहा है. तो फेज चेंज के वक्त आप डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T नहीं लगा सकते. पहली बात ये. सेकंड थिंग, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग्स is equal to 0. ये भी एक चीज है फॉर फेज चेंज. नाउ अब सिस्टम को ऑब्जर्व करो. वाटर इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस. मतलब क्या हो गया? वेपराइजेशन at the boiling point, that is 100 degrees Celsius and 180 atm pressure. So this process represented is nothing but boiling. It is boiling. They may ask you what is true for boiling. So you will say that for boiling, temperature and pressure both remain constant, and boiling occurs at the boiling point. Also it is called vaporization. Because it is vaporization, heat has to be absorbed when the liquid phase undergoes a transition. That is when the liquid gets converted to a gas. It has to absorb heat. So I can say that delta H is positive. So I'll say here water, liquid, is absorbing heat to get converted to
water, gas, that is vapors. So delta H is पॉजिटिव, क्यों हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा एच। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस सिस्टम क्या है? सो डेल्टा एस सिस्टम will also be positive. Right? So I can say that delta H is positive and so delta S system will also be positive. करेक्ट, क्योंकि डेल्टा एच को पॉजिटिव डालोगे तो डेल्टा एस भी सिस्टम का पॉजिटिव आ जाएगा। पर सराउंडिंग्स का क्या? अब इस इक्वेशन को देखो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू 0. So if delta S system is positive, that means delta S surroundings has to be negative. तो ही 0 आएगा ना, करेक्ट? हो गया आंसर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है? B. So B is the answer. तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वाली चीज किसी भी फेज चेंज के लिए ये होता है। फेज चेंज हो, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन हो, ऐसा होता है। ओके, हो गया फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से इसको भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। कॉपी करो पहले, फिर समझाता हूँ। This is the last question for today's lecture. So please understand it very nicely. Copy करो क्वेश्चन पहले।
हो गया यहाँ तक लिख के? हाँ सर। यहाँ तक क्वेश्चन? Okay. So let's understand what is happening in the process. क्या हो रहा है प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं. 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally. Temperature is given to you and the final volume is 3 times the initial volume. ये सब देखे. Expansion is carried out irreversibly. Yani it is an irreversible process. What kind of process? It is an isothermal process. So it is irreversible also and it is isothermal also. So I know both these things about the process. So the moment I say it's isothermal, temperature is constant. And the moment I know it's irreversible, I will apply the delta S system and delta S surroundings for the irreversible process, which I've already given you in the list of formulae for delta S. So we will use those formulae. Expansion is carried out irreversibly, and also they have mentioned something regarding the heat absorbed. The heat absorbed by the gas, that is Q, is 900 joules less than the heat that would be absorbed if the expansion had been carried out reversibly. मतलब क्या? Reversible expansion अगर करते हैं, हाँ, अगर reversible expansion करते हैं तो जितना heat absorb होता उससे 900 joules कम heat absorb हो रहा है अभी जब irreversibly आप expand कर रहे हो. That is the significance. Find out delta S total. और ये सब भी देके रखा है. चलो ठीक है. पहली बात जो मैंने बोला irreversible isothermal process है तो सीधा ये फार्मूला लगा देंगे, which I have given you already. In an irreversible isothermal process, we know that delta S system is this and delta S surroundings is this. ln को हटा दोगे तो 2.303. Correct? These are the formulae for delta S system and delta S surroundings for an irreversible isothermal process. ये पता होना चाहिए. इसको क्या लिखते हैं हम लोग? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Q surroundings upon T surroundings. Very, very important part. Many questions are based on irreversible isothermal process. So irreversible isothermal process देखते ही पहले आपको ये फार्मूले दोनों लगाने हैं, डेल्टा एस सिस्टम के लिए और डेल्टा एस सराउंडिंग्स. So Q surroundings upon T surroundings. Okay. ये अगर पता है then we can go ahead. ये नहीं पता है तो then we cannot go ahead. इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कोई भी irreversible isothermal process में डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है और डेल्टा एस सराउंडिंग्स का फॉर्मूला क्या होता है. These two you have to be very thorough. इसके लिए मैंने लिख दिया कल. Okay. Now it is given that V2 is 3 times V1 and number of moles is 1 mole. तो N को 1 डालेंगे, V2 is 3 times V1 because बोला है कि volume is tripled. Volume is tripled.
So V2 is 3 times V1. तो V2 को 3 times V1 डालेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा ऐसा. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम. क्वेश्चन में दे के रखा है कि e to the power of 1.09 is 3. ये देखो, ये दे के रखा है क्वेश्चन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ मैं अगर ln ले लूं तो ऐसा आ जाएगा ln e to the power of 1.09 is equal to ln 3. ऐसा आ जाएगा. अब ln e to the power of 1.09 is nothing but 1.09 ln ऐसा हो जाएगा. अब ln e का वैल्यू क्या होता है? ln e is equal to 1. That means 1.09 is equal to ln 3. Any doubt in this part? ln e is 1 ना, तो ln e को 1 डाल दो. 1 डाल दोगे तो ln e को ये हो जाएगा. That means ln 3 is equal to 1.09. Right. Okay. ये सब दे के रखा है. ये भी दे के रखा है. तो वो सब डाल दिया. So I got the value of delta system. +9 जूल पर केल्विन. इसको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा सिस्टम आ गया. सीधा सीधा फॉर्मूला का एप्लीकेशन है डेल्टा सिस्टम. ओके, नाउ डेल्टा सराउंडिंग्स. डेल्टा सिस्टम तक पहले कर लो, देन वी विल गो अहेड विद डेल्टा सराउंडिंग्स. सर PV is equal to constant लगा के फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं. Yes, you can do that. But you don't know the values of V2 and V1. Problem हो गया. हाँ सर. तो डेल्टा सराउंडिंग्स तो इस फॉर्मूला से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर V2 और V1 के वैल्यूज पता होते तो सीधा कर देते हम लोग -P एक्सटर्नल इनटू V2 -V1 अपॉन T, उससे हो जाता. बट V2 एंड V1 के वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दिए हैं. सिर्फ इतना बोला है कि V2 is 3 times V1. So that formula cannot be used. So we will use what now? Now we will use Q surroundings upon T surroundings. Delta surroundings निकालने के लिए now we will use Q surroundings upon T surroundings. Okay. Let's go ahead. आ गया. Delta surroundings is this. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स विल बी 300 केल्विन. कुछ बोला नहीं है तो याद रखो कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर सेम रखा जाता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो लिख दिया मैंने ब्रैकेट में वो. सो टेम्परेचर हमारे पास वही है जो सिस्टम का है. बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स विल हैव द सेम टेम्परेचर बिकॉज़ दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके. नाउ Yes, sir. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करोगे तो ये आएगा. Why? Because delta U is 0. Why is delta U 0? Delta U होता है क्या? Delta U का फॉर्मूला सबको पता है अभी. Delta U is equal to NCB delta T. ये होता है delta U का फॉर्मूला. अब delta T जब 0 है तो delta U भी तो 0 ही आएगा.
Delta T क्या है? Change in temperature. There is no change in temperature because it's an isothermal process, and so delta T is equal to 0, and hence delta U is also 0. According to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W, और ये सिस्टम के लिए होता है पूरा. तो डेल्टा U को 0 डालोगे तो ये आ जाएगा ना, Q सिस्टम इज इक्वल टू माइनस W सिस्टम. Right? Any doubt till here? Okay. तो यहाँ तक पता हो गया, Q सिस्टम इज इक्वल टू माइनस W सिस्टम. डेल्टा U क्यों 0 है? क्योंकि डेल्टा T इज इक्वल टू 0. दिस डेल्टा T टर्म जो है, दिस इज इक्वल टू 0. Correct? Okay. Also we know this thing, Q surroundings is equal to minus Q system. मैंने बोला था ना, सिस्टम अगर हीट छोड़ता है तो सराउंडिंग्स हीट उतना गेन करता है. सिस्टम अगर हीट लेता है मतलब सराउंडिंग्स उतना रिलीज कर रहा है, तो Q सराउंडिंग्स इज ऑलवेज माइनस Q सिस्टम. Now let's use the data given in the question. क्या बोला है? In this process, heat absorbed by gas is 900 joules less than the heat that would be absorbed if the expansion had been carried out reversibly. मतलब irreversible में जितना है और 900 joules कम है. I can say this thing. Q irreversible of system is Q reversible system minus 900 because it is less by 900. Any doubt? बोला है ना 900 joules less है, तो less मतलब minus 900 कर दिया इसने. So Q irreversible, that is the actual process which we are doing. Q irreversible of the system is 900 less than Q reversible of system. That is what is given. सब joules में है. Everything is in SI units. Now Q reversible system कैसे निकालेंगे? That तो we know. Isothermal process में Q reversible का formula. That is this. ये कैसे आया? ये इसलिए आया बिकॉज अगर रिवर्सिबल सिस्टम में आप आइसोथर्मल प्रोसेस लगाओगे, फिर से डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W लगाओगे. डेल्टा U इज इक्वल टू 0, सो Q इज इक्वल टू माइनस W. अब वर्क डन के लिए फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है. रिवर्सिबल वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है आइसोथर्मल का? माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1. ये होता है फॉर्मूला वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. तो अगर वो डाल देंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस मिला के ये प्लस हो जाएगा. एंड सो आई हैव रिटन दिस. ऑन सॉल्विंग दिस ये आएगा. सो Q रिवर्सिबल सिस्टम का आ गया आपका 1800 जूल्स. बट ये सिस्टम का आया ना, हमें तो सराउंडिंग्स का चाहिए. तो सराउंडिंग्स का ये बोल सकते हैं माइनस 1800 जूल्स.
because Q system is minus of Q surroundings, or Q surroundings is minus of Q system. ऐसा आएगा तो Q surroundings का आ गया. अब डेल्टा S surroundings का आ जाएगा. टेम्परेचर इज 300. तो Q surroundings कितना है? माइनस 1800. डाल दो माइनस 1800. So delta surroundings is minus 6 joule per Kelvin. If I add up, I'll get this finally. What is this? This is delta S universe. So delta S system is plus 9, delta surroundings is minus 6, plus 9 plus minus 6 is plus 3 joules per Kelvin. माइनस 6 है ना डेल्टा सराउंडिंग्स का, और डेल्टा सिस्टम में कितना आया था? प्लस 9 आया था. तो 9 और माइनस 6 को जोड़ोगे तो प्लस 3 आएगा. So if you add up delta S system and delta surroundings, you will get delta S of universe, that is delta S total. Any doubt? Clear हो गया? Yes, sir. यहाँ पे ये मेन पार्ट था. Q irreversible is equal to Q reversible minus 900. यही क्वेश्चन में देके रखा था. और Q reversible के बदले में हमने क्या डाला? माइनस ऑफ वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज ये रिवर्सिबल के लिए है ना, ये Q रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? माइनस 2.303 nRT log V2 ये होता है. वो 2.303 को हटा देंगे तो ln लिख देंगे. फिर ln log लिखना है तो 2.303 के साथ लिखना पड़ेगा. ln लिखना है तो 2.303 के बिना लिखना है. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.